Assalamualaikum for the people who know me and for the people who don't know me, I am Baria Pathan. Welcome to another video. Thumbnail से जैसे आपने पढ़ लिया होगा कि we are just 20 days away from Ramadan. जितनी एक्साइटमेंट है मुझे जो आप भी देख सकते हैं मेरे फेस से उतनी ही मैं नर्वस हूँ एट द सेम टाइम बिकॉज दिस रमज़ान विल बी अ लिटिल बिट चैलेंजिंग फॉर मी क्योंकि कॉलेज है एंड अदर मोर स्टफ्स टू डू बट इस बार जितना चैलेंजिंग रहेगा ये उसके लिए उतनी अच्छी तैयारी भी करेंगे. फॉर एग्जाम्पल जब आपके एग्जाम्स आ रहे होते हैं यू नो द टाइम टेबल यू नो द पोर्शन आपके एग्जाम्स कब क्या रहेंगे टाइमिंग्स एवरी सिंगल थिंग एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू प्रिपेयर योर सेल्फ कि ओके आज मैं ये चैप्टर्स खत्म करूंगी आज मैं ये खत्म कर लूंगी आज मैं ये रिवाइज कर लूंगी एंड यू आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड एंड क्योंकि आप अच्छे से प्रिपेयर होते हैं आपके एग्जाम्स भी अच्छे जाते हैं अल्लाह मुबारक आपका रिजल्ट भी बहुत प्यारा आता है एंड द सेम वी हैव टू डू नाउ फॉर रमदान कि हमारा रमदान बहुत सक्सेसफुल और अच्छा जाए एंड वी प्लीज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला एज मच एज वी कैन. सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा अच्छी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी एंड दैट इज़ वॉट आई एम गोइंग टू कवर अप इन टुडेज वीडियो. It will be point to point, so sit comfortably wherever you want to sit and note down all the points. Point number 1, make up your missed fast. Sisters, I know कि होता है we are not able to do it because of our busy schedules and life वगैरह but before Ramzan 2024 arrives make sure कि आपके 2023 के जो छोटे हुए रोज़े हैं you complete that and if you find it difficult खुद से करने के लिए please comment down in the video help each other out. कोई एक बड़ी ढूंढ लीजिए जिनके साथ आप कर सकते हो और फिर आपको ही आसानी होगी. Point number 2, review your last Ramzan. Trust me, this is a very important point. So take a piece of paper, pen लेके आराम से कहीं बैठिए. Now reflect on the questions I'm going to be asking. आगे. Point number 1. In what ways did I grow spiritually, mentally and physically in Ramadan 2023? जब आप स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं लाइफ में तो बाकी सेक्टर्स ऑफ लाइफ दे ग्रो ऑटोमेटिकली देन यू डोंट नीड टू वरी दैट मच क्योंकि देखिए रमज़ान वो वक्त पे आता है जब हमारे दिलों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है एंड व्हेन वी टेक इन our hands and our deen is a first priority the other sectors of life वो ऑटोमेटिकली अच्छे से चल रहे होते हैं या जो भी उसमें मसले मसाइल होती है they are solved so you don't need to worry about that very much so get an understanding of that and फिर इस साल के ऊपर वर्क करेंगे. Point number 2, did I felt more close to Allah subhanahu wa ta'ala? This is a very important question again. आपका रिश्ता आपका रिलेशनशिप अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ कैसा था? Did you felt more close to Allah subhanahu wa ta'ala or did you felt कि no I was not that close मुझे distance feel हुआ मैंने वो चीज़ें नहीं करी क्योंकि then if you didn't felt like that last year you can work upon that this year. Question number 3, did I try to leave my bad habits for Allah subhanahu wa ta'ala? रमज़ान क्या है कि हम अपनी बुरी आदतों को छोड़ते हैं. We don't do backbiting, we don't listen to music or we don't consume any single wrong piece of information that is out there on the internet or we say something bad from our mouth. We try our best कि हम अपनी ज़ुबान को कम यूज़ करें. We try कि हम जितना हो सका. आपका रिलेशनशिप अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ कैसा था? Did you felt more close to Allah subhanahu wa ta'ala or did you felt कि no I was not that close मुझे distance feel हुआ मैंने वो चीज़ें नहीं करी क्योंकि then if you didn't felt like that last year you can work upon that this year. Question number 3, did I try to leave my bad habits for Allah subhanahu wa ta'ala? रमज़ान क्या है कि हम अपनी बुरी आदतों को छोड़ते हैं. We don't do backbiting, we don't listen to music or we don't consume any single wrong piece of information that is out there on the internet or we say something bad from our mouth. We try our best कि हम अपनी ज़ुबान को कम यूज़ करें. We try कि हम जितना हो सकता है अल्लाह का जिक्र करते रहे ज़िक्र करते रहे अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल करें इस ज़बान से आँखों से. So that is it कि आप ये अपने आप से पूछेंगे कि did I leave my bad habits in Ramadan 2023 and in case नहीं हुआ so we will work on that in this year. Question number 4, what more good deeds I tried to do in Ramadan 2023? क्या आपने एक्स्ट्रा कुछ डीड्स बढ़ाए थे या आपने कुछ ऐसा करा था कि यू फेल कि अच्छा मैं ये कर रही हूँ मुझे इससे और गुड डीड्स मिलेंगे तो अगर वो कर रहे थे आप सो दिस ईयर वी विल नॉट लेवल इट अप. फिर क्वेश्चन नंबर 5, what were my intentions
एंड लास्ट रमज़ान, जब आपको ये फिगर आउट हो जाएंगे कि अच्छा मेरे ये इंटेंशंस थे, मैंने उस हिसाब से वर्क ऑन किया था, तो फिर इस साल के लिए भी हम अच्छे इंटेंशंस रखेंगे कि उस हिसाब से इस साल भी उस पर वर्क किया जाए, क्योंकि इंटेंशंस आर द बॉटम लाइन जहाँ पे हम सब कुछ आके फिगर आउट करते हैं। व्हेन वी गेट अ वेरी क्लियर पिक्चर इनसाइड आवर हेड कि ओके ये ऐसा हुआ था, ये ऐसा हुआ था। मेरी फॉर एग्जाम्पल मेरा कुरान अच्छे से ख़त्म हुआ था, बट इन तरावी आई वॉज वीक, नमाजों में मैं वीक जा रही थी। मेरे जिक्र हो रहे थे, बट मुझे एक्स्ट्रा और जो नॉलेज है, एक्स्ट्रा हिस्सा करना था, वो हो नहीं पाया। सो देयर वी कैन जस्ट जॉट डाउन थिंग्स कि ओके दिस ईयर हाउ वी विल मैनेज इट, एंड आई विल टेल यू दैट इन अपकमिंग पार्ट ऑफ द वीडियो। Point number 3, make new habits. Start planning and setting your lifestyle abhi se to be ready for Ramzan 2024. What do I mean? Get better understanding of your time, energy and attention. अगर अभी आप ये फिगर आउट कर लेते हो कि अच्छा मेरा टाइम यहाँ जा रहा है, अगर मेरा टाइम प्रोडक्टिव चीज़ों में जा रहा है या अच्छी चीज़ों में जा रहा है, ग्रेट फॉर यू, उसको वैसे ही संभाल के रखते हुए चलो। बट इफ़ यू आर समबडी हु इज़ कंटिन्यूसली स्क्रोलिंग, एंडलेस स्क्रोल करे जा रहे हैं, वक्त का अंदाज़ा नहीं है, ट्रस्ट मी ऐसे नहीं होगा, क्योंकि क्या होता है फिर रमज़ान आ रहे हैं, आके चले जा रहे हैं, एंड ऑल यू हैव इज़ रिग्रेट, एंड we don't want that regret this year. We want to upgrade ourselves. So उस चीज़ को अगर अभी से ही कंट्रोल करते चलो, better for you. Get an understanding of your energy levels कि कौन से टाइम पे आपकी एनर्जी हाई रहती है, कौन से टाइम पे एनर्जी लो रहती है, तो उस हिसाब से यू कैन स्ट्रक्चर आउट कि जो हाई एनर्जी वाले काम हैं आप हाई एनर्जी वाले टाइम पे करेंगे जब आपको लगता है कि मेरी यहाँ हाई एनर्जी है, और जो लो एफर्ट वाली चीज़ें हैं वो आप लो एनर्जी टाइम पे करेंगे। जैसे कि जिक्र आप बैठे बैठे बस आपको बोलना तो रहता है सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सो उसमें उतना एफर्ट नहीं लगता, तो देन यू कैन डू दैट वो टाइम पे। नंबर 3 वुड बी योर अटेंशन कि अभी आपका अटेंशन कौन सी चीज़ों में है। आर यू स्टिल वेस्टिंग योर टाइम इन यूजलेस थिंग्स? क्या आप अटेंशन यूजलेस चीज़ों को दे रहे हो या आप आपका अटेंशन अच्छी चीज़ों को दे रहे हो, जैसे कि गेनिंग इस्लामिक नॉलेज या कुछ भी अच्छा सीखते रहना, कंटिन्यूसली अपग्रेडिंग योर ओन सेल्फ एंड ट्राइंग टू बिकमिंग योर बेस्ट वर्जन। ऑल्सो इफ़ यूर अ चाय एंड कॉफ़ी लवर, अभी से कम करना चालू करें। ट्रस्ट मी, आई एम ऑल्सो अ कैफीन एडिक्ट, और मुझे पिछले साल बहुत भारी पड़ा था। हम इफ्तारी करते थे, इफ्तारी के बाद पहली चीज़ जो मैं बनाने जा रही थी रोज़ किचन में वो कॉफ़ी, क्योंकि तरावी के पहले चाहिए था कि वो नींद भगे, एंड मैं सहरी के भी पहले कॉफ़ी पी रही थी क्योंकि फिर मुझे दिन भर बहुत वो लगता था। सो इस बार तो अल्लाह मुबारक, आई एम रियली वर्किंग ऑन दैट, एंड मैंने अपना कैफीन इंटेक काफ़ी कम कर दिया है। सो इंशाल्लाह मुझे इस साल इतना भारी नहीं पड़ेगा, इसलिए आप भी वो चीज़ पे वर्क करें कि आपको भी ना लगे एकदम से कि यार चाय चले गई या चाय नहीं मिल रही या कॉफ़ी नहीं मिल रही, होते रहता है। फिर पॉइंट नंबर 4, गेट योर ईद शॉपिंग डन नाउ। आई एम टेलिंग यू, जो ये आखिरी के 10 दिनों में निकल के जो शॉपिंग की जाती है एंड फिर इफ्तारी करके भाग रहे हैं कपड़े लेने के लिए, फिर तरावी जारी है, नमाज जारी है, दैट इज़ नॉट एन आइडियल वे। और ऐसा नहीं होता है कि तभी सारे अच्छे पीसेस ऑफ कपड़े आते हैं, अभी भी मिल जाएंगे। गेट इट डन अभी, कि जब लास्ट 10 days ऑफ रमज़ान है आपके पास, तो यू आर ओनली फोकसिंग ऑन योर इबादत rather than any single thing happening in the world. You should not be wasting your time standing in the stores. अच्छा ये पसंद आया, इसके साथ ये झुमके, इसके साथ ये रिंग, वो अभी भी ली जा सकती है। We are doing it from last 5 years कि हम लोग पहले से शॉपिंग करके रखते हैं। We do not worry about it in the last moment या last days में। सो गेट इट डन अभी, सिलाई भी अभी सस्ती मिलेंगी तो इसलिए अभी कर लो। पॉइंट नंबर 5, स्टार्ट मेकिंग योर दुआ लिस्ट अभी से। आई एम टेलिंग यू, इट शुड नॉट हैपन कि आप यहाँ इफ्तारी के वक्त पे बैठ रहे हैं दस्तरखान पे, ना आपको पता ही नहीं कि आपको क्या दुआ मांगनी है अल्लाह ताला से, क्योंकि होता है वी समटाइम्स गेट ब्लैंक, क्योंकि वी आर इन दैट हंगर वाला फेज की भूख लग रही है एंड माइंड गेट्स टोटली ब्लैंक। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो सबसे ज़्यादा कबूलियत का वक्त होता है। तो स्टार्ट राइटिंग योर दुआस अभी से कि अल्लाह ताला मुझे मेरे वालिद साहब के लिए चाहिए, मुझे मेरी वालिदा के लिए चाहिए, फॉर माई सिस्टर, फॉर माई फ्रेंड्स एंड फैमिली, खुद के पर्सनली भी आपके करियर के कुछ गोल्स होंगे वो, या आपको कुछ कि अल्लाह ताला ये सेक्शन ऑफ लाइफ में ग्रोथ नहीं मिल रही है या ये चीज़ में क्लैरिटी नहीं आ रही है। एवरी सिंगल छोटी सी छोटी भी अगर चीज़ होंगी ना, हर चीज़ के लिए दुआ करो। हर चीज़ का जवाब है, हर चीज़ का जवाब मिल जाएगा, एंड एवरी सिंगल थिंग इज़ पॉसिबल व्हेन
when it comes to Allah subhanahu wa ta'ala. So make dua for every single thing that you have. Also remember me in your duas. Now as we have come almost to the ending part, I will share very two important frameworks जो आपको बहुत हेल्प करेंगे रमज़ान की तैयारी करने में, रमज़ान की प्रिपरेशन के लिए. फ्रेमवर्क नंबर 1, get a piece of paper, divide it into 3 sections: worst case scenario, best case scenario and actionable steps. अब अपने 1 मिनट के लिए आंखें बंद करो एंड जस्ट थिंक कि आप आखिरी डे पे खड़े हो, द 30th डे ऑफ रमज़ान, एंड यू रिव्यूइंग कि अच्छा मेरा रमज़ान कैसा था. वर्स्ट केस कुड बी आपने सीरियल देखने में निकाल दिए, आपने आपके टाइम का यूटिलाइजेशन नहीं करा, आपका ना कुरान ख़त्म हुआ, ना कुछ हुआ, जो चीज़ें सोची थी कुछ भी नहीं हुई. वर्स्ट केस आपको बस अब रिग्रेट है कि क्योंकि यू नेवर नो, ये आपका आखिरी रमज़ान हो सकता है, आपका क्या मेरा भी आखिरी रमज़ान हो सकता है. सो वी नेवर नो. ये हमारा वर्स्ट केस है. बेस्ट केस सिनेरियो, तहज्जुद हो रही है, 5 टाइम की नमाज सुन्नतों के साथ, पूरे रोजे हुए, अस्कार पढ़े, कुरान ख़त्म हुआ, ज़कात दिया, सब अच्छा, वालदा खुशी की इतनी इबादत कर लिए. बेस्ट केस सिनेरियो. अब वर्स्ट और बेस्ट 2 चीज़ें देख लिए. वर्स्ट चीज़ तो बिल्कुल नहीं चाहिए, तो इसलिए वर्स्ट चीज़ से बचने के लिए हम बीच में लिखेंगे एक्शनेबल स्टेप्स. अच्छा मैं इतनी इबादत रोज़ करूँगी, अच्छा मैं इतने दिक़र रोज़ करूँगी, अच्छा मैं इतना ज़कात डालूँगी ही रोज़. एक कॉइन बॉक्स बना लीजिए या कुछ भी डब्बा बना लीजिए और उसमें रोज़ डालते रहिए. अच्छा मैं कुछ ना अच्छा पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन अपने सोशल मीडिया पे शेयर करूँगी कि लोग पढ़े एंड उसका भी सवाब मुझे मिले, बिकॉज ये भी एक चीज़ होती है कि अच्छी चीज़ अगर आप शेयर कर रहे हो तो आपको उसका सवाब मिलता है. सो विद दिस यू विल गेट अ वेरी क्लियर पिक्चर इनसाइड योर हेड कि अच्छा कि मैंने इमेजिन कर लिया कि अगर मैं वर्स्ट पे हूँ तो मैं ऐसी रहूँगी और अगर मैं बेस्ट पे हूँ तो ऐसी रहूँगी, एंड देन योर रमज़ान विल ऑफ कोर्स गो वेरी वेल. फ्रेमवर्क नंबर 2, अब हम इसमें 3 लिस्ट बनाएंगे. योर टू डू लिस्ट, ये तो सब बनाते ही बनाते हैं, बट योर टू नॉट डू लिस्ट एंड योर कंसिस्टेंसी लिस्ट. अब मैं बताऊंगी कि मैंने ये 3 क्यों रखे. टू डू लिस्ट तो हर कोई बनाता है कि चलो ये करना है, वो करना है, हमको नमाज पढ़नी है, हमको तहज्जुद पढ़नी है, हमको शराक पढ़नी है, हम ये भी इबादत करेंगे, हम यकीन इंस्टीट्यूट का लेक्चर भी देख लेंगे, हम मौलाना तारिक जमील को भी सुन लेंगे, फरहत हाशमी जी को भी सुन लेंगे. पर हम टू नॉट डू लिस्ट तो भूल जाते हैं कि हम म्यूज़िक नहीं कंज्यूम करेंगे, हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, हम बैक बाइटिंग नहीं करेंगे, हम गलत ज़बान का इस्तेमाल नहीं करेंगे. सो ये हमारा टू नॉट डू लिस्ट में आ गया है, एंड देन इट कम्स द कंसिस्टेंसी लिस्ट कि अच्छा ये करना है, रोज करना. कंसिस्टेंसी लिस्ट के बारे में मैं इसलिए बोल रही थी क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, टेक अप गुड डीड्स ओनली एज मच एज यू आर एबल टू, फॉर द बेस्ट डीड्स आर दोज दैट आर डन रेगुलरली इवन इफ दे आर वेरी फ्यू. ही ऑल्सो सेड, the most beloved of deeds to Allah are those that are done consistently even if it is small. So I hope you get that picture कि मैंने क्यों consistency वाली लिस्ट बोली, कि अगर धीरे धीरे या छोटी छोटी भी डीड कर रहे हैं पर रोज रोज कर रहे हैं, so you will benefit from it at the end of the day. And consistency is the key. 30 days, 30 रोजे, रोज इबादत, रोज अपना बेस्ट देना. Be very calculative of your time. Do not take any single day for granted. बिल्कुल ऐसा सोचना नहीं कि आज चलो देखते बैठेंगे, because as I said, you never know, this might be your last Ramzan, this might also be my last Ramzan, we never know. Let's make our intentions very pure. Let's make दुआ कि अल्लाह ताला हमें रमज़ान तक के पहुँचाए, हमारे जो डीड्स और हमारे एफर्ट्स है उसको एक्सेप्ट करे, make it easy for us and all the people around the world. As we have now come to the ending part of the video, I will now take a leave. Ladies and gentlemen, this is me signing off. Bye, Pathan. Take care of yourself. See you in the next video super soon. Bye.